Now let's shift gears. Invocate at the heart is about education leadership, and how can we do an event without actually having education leaders be with us? Our first mile stakeholders who drive the overall quality of education in the country and globally. They are our heroes, they are our leaders. In the next session, we will listen to our education leaders talk about their journey, their challenges, their life, and actually open it up for everyone to make sense of it. And for this, I now invite Mr. Santosh More, who is the co-founder of one of India's leading nonprofits, Mantra for Change, to take the conversation forward. Over to you, Santosh. Thank you so much, Neeraj. Am I audible? Yes. Perfect. Thank you so much, Neeraj. I think this is really exciting, and I would say it's. I'm very fortunate that I'm going to be the moderator for this particular session. This is one session where we have actors from Samaj, Sarkar, and Bazaar, and over the next 60 minutes, I believe we would get an opportunity to learn from each of the members who have joined us about their lives, about how they are exhibiting leadership qualities in the realm of their current realities. With that, I would take a couple of minutes to introduce all our esteemed panelists. I'll start with Amarjeet sir. Amarjeet sir is District Education Officer in one of the districts in Punjab. We have Pooja ji. Pooja ji is a parent and she's also an SMC member in Sonipat, Haryana. We have Sabina Banu. Sabina Banu ji is CRP, the cluster resource person in Tumkur, Karnataka. And we have Sir Tulsi Prasad. He is principal of one of the private schools in Andhra Pradesh. He is also the vice president of quality unit at NISA. NISA is a body which has a lot of private schools under it. With that, we would like to start the conversation, and I would like to start with one question that I think is what everybody wants to know, what everybody wants to understand from the leaders who are there, who are here, who are present. What does your daily life look like? What does your day-to-day activity look like? And I request Amarjeet sir to probably start with that question. Amarjeet sir? Yes, sir. Yes, sir. So, sir, the question I would again say, so the idea is that audience would be able to understand more from you. What does your day-to-day life as a DEO, as a district education officer look like? हमने ना वो क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, बिल्कुल आवाज आ रही है. मैं आपको अपना एक्सपीरियंस जो हमने कोविड-19 में जो काम किया वो शेयर करना चाहता हूँ. जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल. कोविड-19 में जब स्टार्ट हुआ लास्ट ईयर, सॉरी 20 later in March 2020, there is a very much problems faced by everybody. बच्चों को हमने ये कड़ी उनके तक पहुंचानी थी, वो हमने पहुंचाने के लिए जो हमने काम किया वो मैं आपसे कुछ शेयर करूंगा. जी सर. हेलो. हाँ सर, बोलिए. सर आ रही है आवाज? जी सर, बिल्कुल आ रही है, अच्छे से आ रही है सर. ऑडिबल. तो ये सबके लिए चैलेंज था एक, सभी लोगों के लिए. वो ऐसे दिन थे जब हम हर एक चीज को हाथ लगाने से डर रहे थे. इवन के जो हमारे घर का सामान था उनको भी हम हाथ लगाने से ऐसे डर रहे थे कि
उनको 2-2, 3-3 घंटे पहले घर के बाहर रखते थे, फिर उसको अंदर लेकर आते थे। वो बच्चों तक वहाँ कैसे पहुंचा जाए, उनको कैसे पढ़ाया जाए, उनको स्टडी कैसे कराई जाए, ये हमारा चैलेंज, हमने उसको चैलेंज को लिया। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले हमने एक 52 लोगों की, टीचर्स की एक टीम तैयार की, जो उनको बाकी टीचरों को हमने सेंसिटाइज करना था। अभी हम ऑनलाइन स्टडी करा रहे हैं सभी को। ये कोई इतना कोई हमें बड़ा काम नहीं लग रहा, लेकिन जब ऐसा काम था, हमारे जो पंजाब में ऐसा थे टीचर थे जो इनको टेक्निकली जो बहुत कम लोग जानते थे, तो हमने पहले टीचरों को कम टेक्निकली उनको स्ट्रॉन्ग किया। मिस्टर संजय बैठे हैं सांझी शिक्षा वाले, इन लोगों का हमने साथ लिया। इन्होंने हमारी हेल्प की लोगों को ट्रेन करने के लिए। तो हमने लोगों को लोगों मतलब हम टीचर्स को हमने ऑनलाइन स्टडी का जो तरीके थे, जूम मीटिंग वगैरह, गूगल मीट वगैरह, ये हमने उनको सेंसिटाइज किया। इसके साथ साथ सोसाइटी को भी हमने सेंसिटाइज किया, क्योंकि लोग एक समय ऐसा था कि जो जूम का जो काम था, वो अखबारों में ऐसे खबर आ रही थी कि जूम के जरिए जो हम मीटिंग करते हैं, जो हमारा डाटा है वो किसी और के पास जा रहा है, हमारी सीक्रेसी लूज होती है, ऐसा काम। टीचर भी डरते थे, लोग भी डरते थे। पहले तो हमने लोगों को और टीचरों को ऐसे सेंसिटाइज किया कि ऐसा कौन सा डाटा है जो लोगों से छुपाना चाहते हैं। हम तो बच्चों को पढ़ाने के लिए बात कर रहे हैं। अगर हमारा ये आइडिया, अगर कोई चुराता है तो चुरा ले, तो ये कोई बुरी बात तो नहीं है। तो ऐसे लोगों को हमने आहिस्ता फील्ड में जाकर लोगों को हमने तैयार किया, और नियर अबाउट 3000 जो मेरे अंडर टीचर काम करते हैं, लगभग 3,000 टीचर हैं, उनको हमने अलग अलग जो हमारे एम्प्लॉयंस हैं, जो हमारे मीडिया के जो जरिए हैं, उनके लिए उनको तैयार किया। तो इन द सेम टाइम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने भी ऐसा काम स्टार्ट किया कि दूरदर्शन के जरिए बच्चों को पढ़ाने का एक काम शुरू किया था। तो उसमें से क्या भी टोटल पंजाब में 125 टीचर्स की एक टीम बनी, जिनमें अकेले हमारे 75 जो टीचर थे हमारे अकेले पटियाले में से काम करते थे। वो वीडियो पहले बनाते थे अपनी, तो वीडियो को फिर वो दूरदर्शन जो जलंधर जो जहाँ जैसे भी था वहां पर वो जो लेक्चर थे वो डिलीवर होते थे। इसके साथ हमने जो कुछ लोकल रेडियो वगैरह चैनल थे, रेडियो चैनल थे, उनसे बात की, और उनके जरिए भी आप जो हमारा जो लेक्चर, जो हमारे बच्चों के लिए लेक्चर थे, वो पाठ्यक्रम के अनुसार उनको हमने प्रोवाइड किए। इसके साथ एक और जो हमारा जो इसमें बड़ा एक्सपीरियंस रहा कि हमारे बहुत सारे बच्चे प्राइवेट सरकारी स्कूलों में, आपको मालूम है, ऐसे हैं कि जो फाइनेंशियली दे आर नॉट बेटर। तो हमने उनके लिए भी, जो हमारे जो रिमोट एरिया में काम करते थे, तो हमने जहाँ कुछ जो ईंटों का भट्ठा है, वहां पर भी हमने बच्चों के लिए एलईडी वगैरह प्रोवाइड करवाकर वहां भी हमने पढ़ाने के लिए काम किए। तो जो वहां का जो बच्चों का जो कंटेंट था, बच्चों को कंटेंट पहुंचाने के लिए पेन ड्राइव वगैरह में उनको हमने जो प्रोवाइड करवाए। और वहां के जो मालिक थे, जहाँ उसका वहां जो वेंडर वगैरह भट्ठे वाले थे, उनको हमने बोल रखा था कि शाम को जब बच्चे इकट्ठे होंगे तो इनको ये हमारा ये बड़ा जो है कंटेंट बच्चों को दिखाना है। तो इसमें हम काफी कामयाब हुए। उस समय में हमने ऐसे हमें नहीं हमने शॉर्ट जो था, लगता था शॉर्ट फॉल आएगा, जो हमारे अंदाजे से, जो लोगों का अंदाजा था, लेकिन हमारे अंदाजे से भी जो शॉर्ट कम नियर अबाउट हम 75% जो हमारा स्टूडेंट था उस समय, उनको उन तक हम अप्रोच कर सके। तो ये एक बहुत अच्छी फिगर थी, क्योंकि स्कूल बंद थे, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते थे। नो वन कैन गो आउटसाइड द स्कूल और अदर होम्स। तो हमारे टीचरों ने ऐसे काम करके उनको जो है एजुकेशन देने का एक काम किया। उसके बाद जब थोड़ा रिलैक्सेशन का टाइम आया, तो हमारे जो टीचर थे वो हमने डोर टू डोर उनको भेजा,
और उन्होंने बुक्स और जो हम जो बोलते हैं कुछ सहायक जो मटेरियल था वो हमने पहुंचाया। तो उस समय हमने एनजीओ और टीचरों की मदद से आपको शायद ये जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनकर यकीन नहीं होगा कि हमने 12 लाख का जो अमाउंट का जो स्टेशनरी था वो बच्चों को प्रोवाइड करवाया फ्री ऑफ कॉस्ट। 12 लाख हमने एनजीओ टीचर्स की ये मतलब उनसे मदद ली, तो हमने वो टीचरों को मतलब बुक चाया। इसके साथ हमें कुछ और प्रॉब्लम्स आई जब हम ऑनलाइन पढ़ाते थे बच्चों को लिए। उनके पास नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, तो हमने लोगों को, आसपास के लोगों को उनको सेंसिटाइज किया और उनसे फ्री ऑफ कॉस्ट जिनके घर वाईफाई वगैरह था, वाईफाई का कनेक्शन था, वो हमने बच्चों को 1 घंटा 2 घंटे के लिए प्रोवाइड करने के लिए बोला। तो जिसके साथ जो हमारे बच्चे थे वो हमारे साथ जुड़ पाए, और इसका जो इम्पैक्ट ये पड़ा कि हमारा 30% जो एडमिशन है इन हमारे स्कूलों में वो हमें इंक्रीज कर सकते। थैंक यू सर। सर थैंक यू सो मच। आपकी बातें सुनकर काफी मजा आया। और रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता है सर, लोहे के पेड़ हरे होंगे तू गान प्रेम की गाता चल। आप जब बोल रहे थे तो मुझे वो कविता की ये 2 लाइनें याद आ गई, तो मैंने सोचा कि सबको बोल भी देता हूँ। अब हम लोग यहाँ से सर शिफ्ट करते हैं, हमारे नेक्स्ट पैनलिस्ट की ओर जाते हैं। तो पूजा जी, मैं आपके ऊपर आना चाहूंगा और आपसे ये समझना चाहूंगा कि कोविड के टाइम पर आपने एसएमसी के भूमिका अदा करते हुए किन समस्याओं का सामना किया और उन समस्याओं को हल करने के लिए आपने क्या क्या प्रयास किए? पूजा जी, केतिका। नमस्ते जी। जी नमस्ते नमस्ते। कोविड का टाइम आया था ना सर, जैसे बच्चे पढ़ाई के और उसके तो कोविड के समय क्या आपको जब समस्या आई थी तो आपके एसएमसी मेंबर होते हैं, क्या समस्या आई और आपने उनको कैसे हल करा? अच्छा सर, जैसे पहली समस्या तो ये थी बच्चों की, जैसे कोविड आया ना, सब अंदर मतलब बाहर घूमते थे कोविड के टाइम पे। तो मैंने 1-2 बच्चे से पूछा, बेटा क्यों घूम रहे हो बाहर में? वो बोले आंटी हमारे पास बुक नहीं है। मैं कह रही बुक नहीं है, चलो कोई बात नहीं, मैं मैम से बात करूंगी। तो फिर मैं स्कूल में गई मैम के पास, सरकारी स्कूल में बबीता मैम हमारी। तो मैं बोली मैम मतलब बच्चे है ना बिना पढ़ाई के है ना थोड़ा सा वो वीक चल रहे हैं, तो बुक हैगी मैम? तो वो बोल रही पूजा बुक तो है नहीं, तो क्या करें? मैं बोली चलो मैं है ना देखूंगी भाई घर घर जाके सभी के। तो मैंने बुक इकट्ठा की, जैसे कोई चौथी में था तो वो 5वीं में चला गया, उनको ऐसे ही मतलब बुक मैंने सभी की एक्सचेंज करवाई। भाई चलो मतलब अगर नई बुक नहीं है तो पुरानी में तो काम चलाओ, जब काम ही पढ़ना है चाहे पुरानी में पढ़ो चाहे नई में पढ़ो सर। और कुछ अगर आप बताना चाहेंगे? अच्छा जैसे कि अच्छा हाँ जी, कोविड में जैसे में मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई बहुत ज्यादा, जैसे जगह जगह पुलिस खड़ी रहती थी, जाने नहीं देती थी। तो मैंने कहा सर बच्चों की है ना पढ़ाई है ना खराब चल रही है, उनको राशन भी दुआना मैंने। तो बोले भाई आप कौन हो? मैं कह रही मैं सर एसएमसी की मेंबर हूँ सरकारी स्कूल की। तो उन्होंने क्या किया, बोला पहले तो मेरे को मास्क दिया, फिर बोला ये दस्ताने पहन लो तब तुम काम करना, अगर तुम भी बीमार पड़ जाओगी तो कैसे काम करोगी? मैंने कहा सर ठीक है, थैंक यू सर आपका, भाई आपने बता दिया इतना, भी मास्क लगाना या हाथ पे दस्ताने पहनते हैं। तो फिर मैं अपनी जो कॉलोनी है ना उसमें घर घर जाके मैंने पहले तो बुक इकट्ठा की सर, फिर राशन आया बच्चों को, तो सारे सभी जगह मैंने ना राशन पहुंचाया मैम के साथ मिलके। मैम को तो घर का पता नहीं था, तो मतलब ऐसा है ना बहुत दिक्कत हो गई थी सर। कोई तो ऐसा बोल देता था नहीं हम बुक नहीं देंगे। मैंने कहा ऐसा है बुक है ना सरकार की तरफ से आई है तो बुक आपको देनी पड़ेगी, आप दोगे तो तभी आपको बुक मिलेगी है। अगर आपका बच्चा तीसरी में है, चौथी की बुक चाहिए तो भैया आपको तीसरी की बुक देनी पड़ेगी। तब उन्होंने मेरी बात समझी, तब मेरे पास बुक आई, तब मैंने राशन पहुंचाया। मैं बोले भैया आप कौन हो? मैं कह रही मैं सरकारी स्कूल में एसएमसी की मेंबर हूँ। तो उन्होंने बोला अच्छा, तो उनको भी नहीं पता था सर बिल्कुल भी एसएमसी क्या होती है। मैं घर घर जाके ना मैंने एसएमसी के बारे में बताया, तब उन्होंने ये पता चला भी हाँ भाई ये एसएमसी की मेंबर है। पूजा जी, कभी ऐसा हुआ क्या कि कोई बच्चे आपके पास आए हों और
आकर बोला हो कि हमें पढ़ना है, हमें आप क्या सुविधा उपलब्ध करवा सकते हो। मैं एक तो समझ जो पा रहा हूँ कि आपके तरफ से काफी एफर्ट लिया आपने, काफी प्रयास किया, काफी कोशिशें की। बच्चे भी आपके पास आए होंगे बोलने के लिए कि हमें कुछ उपलब्ध करा दीजिए पढ़ाई लिखाई करने के लिए। हाँ जी सर, ये तो बहुत ज्यादा हुआ मेरे साथ। जैसे हमारे यहाँ पे ना बाहर गांव से मतलब ज्यादा बच्चे हैंगे, कोई बिहार से, कोई यूपी से, मतलब बहुत जगह से है। मैंने खुद अपने घर से राशन दिया बच्चों को खाने के लिए। और बुक के भी ऐसे ही था सर, जैसे मेरे बच्चों की थी, मैंने अभी बोला था भाई, मैंने इकट्ठा की थी बुक की तो बहुत ज्यादा परेशानी थी सर। किसी की फटी हुई थी, किसी कैसा। मैं बोली बता जैसा भी तुम लोगों को होगा ना तो वैसा मैं कर दूंगी, बस मेरे साथ है ना। जैसे मुझे ये नहीं पता भी किसका घर कहाँ पे है, तो पूछ पूछ के मैं गई उनके घर, तो उनसे बुक ली, बुक लेके बच्चों से दी। अभी मैं थोड़ा सा सही चल रहे हैं बच्चे। थैंक यू पूजा जी। मैं बहुत सारी बातें जो आपने बताई अभी बच्चों के रिलेटेड, प्लस आपके खुद के प्रयासों के कारण जो बच्चों को पढ़ाई करने का अवसर मिला कोविड के समय में, काफी काफी बढ़िया प्रयास रहा आपका, और आपके ऊपर दोबारा हम आते हैं। अभी मैं नेक्स्ट हमारे जो पैनलिस्ट हैं सबीना बानू जी। सबीना बानू जी हमारी टुमकुर में सीआरपी हैं। और सबीना बानू जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि कोविड के समय जो परेशानियां हुई, परेशानियों के समय में आपने, आपके हिसाब से कौन सी स्किल्स हैं आपके पास, या कौन सी लीडरशिप क्वालिटी जिसके वजह से आपने उन परेशानियों को हल किया? मुझसे जी? जी जी सबीना, आपसे। मैं एक रिसर्च पर्सन के रूप में काम करती थी। अभी मुझे कोविड के टाइम पे और टीचर्स को मोटिवेशन करने की बहुत चैलेंजेस को पड़ा था। जी जी। क्योंकि टीचर्स से बहुत डर रहे थे, और सरकार ने भी तो ये कहा था कि स्कूल को तो क्लोज है, स्कूल नहीं चलते, लेकिन बच्चों से लिंक रहना चाहिए हम लोगों का। तभी टीचर्स कहते थे कि कैसे करें हम लोग, कैसे। सो मेरा पहला चैलेंजेस था कि बच्चों को मिनिमम का थोड़ा सा तो भी लर्निंग में उनको अभी जोड़ के रखे हम लोग। बल्कि वो टच में ना चले, टच छोड़ दिया तो क्या करेंगे हम लोग, कैसे उन लोगों को लेके हम लोग बच्चों को। अगर अभी तो मेरा खरिया है, बहुत बहुत छोटा खरिया है, और वो बच्चे भी लोग उधर उधर के पेरेंट्स भी हैं अनपढ़ है, बहुत से अनपढ़ हैं। तो उन लोगों को हम लोग मोटिवेशन करके, उधर तो नेटवर्क भी बहुत प्रॉब्लम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा चैलेंज था टीचर्स को मोटिवेशन करना कोविड के टाइम पे। उनका वो घबराहट था, वो जो डर था, उसको बाहर निकाल के, नहीं अगर हम लोग बच्चों से अगर किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में बच्चों से लिंक कर सके, तो हमारा भी थोड़ा एफर्ट पड़ जाए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा लिंक रख लेके बच्चों को लर्निंग में ला सकते हैं। अगर लर्निंग छूट गया बच्चों का, तो उस टाइम अगर बाद में स्कूल खुलेंगे तो बहुत सा प्रॉब्लम हम लोगों को क्या सामना करना पड़ता है। इसलिए हम लोग सोचा नहीं, पहले चलो हम लोग 3-4 टीचर्स मिले, मेरे को टीचर्स को मिल लिया मैंने, उनको लेके क्या क्या पहले डिस्कशन किया हम लोगों ने। नहीं ऐसा करे, ऐसा प्लान किया हम लोगों ने कि कैसे हम लोग बच्चों से मिल सके, और कैसे हम लोग इस पैंडेमिक पीरियड में सही है बच्चों की लर्निंग को कंटिन्यूस रख सके। सो मैंने क्या किया, हर 3 महीने शाम 7 बजे से 7:30 बजे तक मेरे टीचर्स को गूगल जूम मीटिंग किया, और हम लोग डिस्कशन कर कैसे वीडियो करना है, कैसे टीचिंग को टीचिंग लर्निंग कैसे अडेप्ट, बच्चों का सिंपल इवन कन्नड़ा है मेरा, तुमकुर कर्नाटक का। सो कन्नड़ा लैंग्वेज में कैसे हम लोग फर्स्ट कन्नड़ा में बेसिक लर्निंग का, और कौन सा अक्षर वर्णमाले हो या जो से भी हो वो बेसिक, क्योंकि अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड को एडमिशन हुआ सब बच्चे को कुछ भी लर्निंग नहीं मिलता था, कुछ भी टीचर्स का लिंक नहीं मिलता था, उसको टीचर्स का इंट्रोडक्शन भी नहीं हुआ था। वो बच्चों को भी हम लोगों ने लर्निंग में लाने की कोशिश की, बहुत से कोशिश की। तो बच्चा मेरे कोई टीचर्स ने क्या किया कहते हैं, क्या कर बैठ के हम लोगों ने प्लानिंग करके, थोड़ा प्लानिंग बना के क्या किया, छोटे छोटे वीडियोस बनाए। हम लोगों क्या करें, जिसके घर में नेटवर्क है
उनको फोन किया, फोन करके बोले आपके आसपास के घर के जितने बच्चे हैं उधर बिठाओ बोल के, उधर डिस्कशन करने के लिए बिठाओ, हम लोग वीडियो करते हैं वो सुनाओ बोल के। सो हम लोगों को क्या किया, थोड़े पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, अच्छा मैडम हम लोग आपको सपोर्ट देते हैं बोल के, और क्या क्या थोड़े लोगों ने सपोर्ट दिया। तो हम लोग क्या करें, अभी 15 लड़के बच्चे हैं वो गाँव में, बोले तो 10 बच्चे तो आके उधर बैठ के हमारा वीडियोस देखना और हमारा डायरेक्ट लाइव प्रोग्राम देखना, वो देख के कुछ तो लर्निंग में वो हिस्सा लेने के लिए हम लोग उनको ट्राई करें। और बहुत से टीचर्स को, कुछ टीचर्स कोशिश किया कि आके गाड़ी में जाके 2 व्हीलर्स यूज करके पुलिस को कन्विंस करके नहीं हम लोग जाके कुछ वर्कशीट दे के आते हैं। तो थोड़े टीचर्स जाके क्या किया, जाके बच्चों को मोटिवेशन किया, नहीं आपको खेलना है, जरूर है, कोविड है, जानते हैं हम लोग बहुत पैंडेमिक है पीरियड हम लोगों को, लेकिन आपको लर्निंग नहीं छोड़ना चाहिए। अगर लर्निंग छोड़ दिया तो बेसिक भी नहीं रहेगा आप लोगों का, और आपकी पढ़ाई का भी बहुत नुकसान हो जाएगा। तो वैसे जाके मोटिवेशन के थोड़े जाके एग्जाम्पल ले रहे थे, मियाँ बीबी दोनों भी टीचर्स थे मेरे एरिया में, उनको मैंने मोटिवेशन किया, जाओ जाके देखिए, कोशिश तो कीजिए आप थोड़ा। वो क्या डिस्कशन करके मेरे साथ थोड़ा सा अपने ओन वर्कशीट रेडी करके सिंपल वर्ड्स यूज करके ऐसे करके जाके वो उधर वो बच्चों को पेरेंट्स के मिलके वर्कशीट देके ऐसे बैठा के घर में ऐसा करो, और ना SOP फॉलो पे कर रहे थे जो उसके साथ साथ ये भी कर रहे थे। सो वो इससे मेरा स्किल है ना मोटिवेशन का ये स्किल, और लर्निंग बेसिकली लिसनिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल को मैंने इम्प्रूवमेंट करने के लिए बहुत से कोशिश की। और इसमें मेरे टीचर्स का भी बहुत योगदान है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत बारी लोग बोलते हैं मैम हम लोगों को, हम लोग NGO में काम करते हैं, बहुत बारी लोग हम लोग को बोलते हैं कि सरकारी स्कूलों में मोटिवेशन की कमी है। अगली बार किसी ने मुझे ये बोला तो मैं उसको सीधा आपसे बात करवा दूंगा, ठीक है? जरूर सर, थैंक यू सर। मतलब आपको देखकर और आपसे बात करके मुझे पक्की उम्मीद है कि मैं और मेरे जैसे जितने भी लोग हैं यहाँ पर सबके सब काफी मोटिवेटेड हो रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा मैम आपको सुनकर। मैं अब थोड़ा शिफ्ट करता हूँ फ्रॉम द पब्लिक स्कूल्स टू द प्राइवेट स्कूल। हमारे साथ तुलसी सर जुड़े हैं आज। सर, thank you so much for joining us. One question that we have heard a lot of times during the COVID time is that the private schools were most affected. And I know that you are wearing two hats here. One is you are principal of a private school, plus you are also head of quality unit at NISA. What helped you to fight those challenges in the COVID time? First of all, what were those challenges that you faced as private school association head and also the school principal, and how you were able to handle those challenges, sir? Over to you, sir. Yes, thank you. Thank you, people at Invoke. And see, I'm one correction. I am a school leader. I am not a principal. Okay, sir. So I am a school started by my grandfather in 1949. I'm the third generation school leader, right? I'm also the vice president of National Independent Schools Alliance, which is an alliance of 66 state associations from 24 states. So we focus on two things. One is advocacy. The other thing is quality private schools. Private schools survive only because the perception the parents have that once you put your child in the private school, there will be lots of attention paid to the individual student, and we will focus on their strengths and weaknesses, and we try to correct them. So we'll have lots of motivation, and we have lots of appreciation from the parents. So that's how we function. And I'm also the general secretary of Andhra Pradesh Private Unaided School Management Association, one of the biggest state associations in the state associations in India. We have around 10,000 members in our association. So if you please come again with your questions. Clearly I didn't hear them. Sure, sir. Sir, my question is that we have heard from multiple people that private schools were badly hit during the COVID time. Yeah. So got your question. How you were able to, first of all, what were those challenges?
And secondly, how you were able to handle those challenges, sir? Yeah, very right question, Santosh. These 2 years were the toughest time for private school managements. So, students were at home, but Andhra Pradesh is a little better because in Andhra Pradesh was the only state which opened the schools much earlier, right? Some of the states like Delhi and Bombay, they suffered a lot. And this is one of the, you can say disasters for the private schools. But at the same time, the good thing that happened is all the school leaders like me, we took a pause because that pause happened because of the COVID. Then we were able to review what we are doing and what more can be done, right, sir? So when I continuously worked for the morale of the private school leaders. Many of them committed suicide, sir. Many of them committed suicide. That's a sad fact. And you cannot ask the parents to pay the fees because the position of the parents is also not good. They are not making any earning. 70% of the population is hit by the COVID-19. So the private schools, I will just briefly explain how many private schools are there in India. See, there are 15 lakh schools. No, sir, 15 million schools in India. Out of them, 4.5 lakh schools are private schools. So we hold around 20 crores children in our private schools. And believe me, usually the popular talk which comes across the channels and newspapers that these people are the private schools are the looters, private schools are the whatnot. You call all kinds of bad negative perception on us. But believe me, sir, only 5% of the schools collect lakhs of rupees. Only 5% of the schools. 95% of the schools collect what the government is spending on each child, 80,000 rupees across the country, sir. We collect maybe around 20,000, 10,000, even some schools are there where they collect only 300 rupees per month. This is the kind of scenario. So I just would like to all the teachers, they can understand the situation. And the same teachers, the same press, the same people, they want their children to be in the private schools only, sir. So this is the kind of situation. And we try to uplift the morale of the school leaders. We held lots of Zoom classes. And what the good part is that we have advanced at least 5 to 10 years in technology, sir. So we were able to adapt to this new trend like conducting Zoom classes, hybrid classes. So now the learning it's a learning period for the school leaders as well as the teachers, because the teachers, when they started their Zoom classes in June 2020, by the time the class ends, they were totally in full sweat. I used to ask them, why are you so stressed? Sir, we cannot see the children. So it's super hard for us to concentrate. So it's a very stressful. But what happened is during these 2 years, the teachers have become much better. They have become, they are good at using the technology. They have improved their teaching techniques. Then finally, students came back to the schools, and many of the schools were closed down. In Andhra, for example, there are 17,000 schools. Around 3,200 schools were closed down. And across the country, I don't know what is happening, but as a NISA leader, what we did is we did learning loss for a survey we did across the country. We found out that 98.3% of the children, they want to come to classes. They don't want Zoom classes. So what happened is they have 3 losses, sir. One is they have lost their classmates. And now even after coming back to the school, they cannot touch each other. They have to wear masks. So this is new untouchability, I can say. This is a new untouchability. So they are missing that psychological, the physical, and all these losses happened. And the behavior of the children, no, it became very, very, disastrous. So these children, they are used to the gadgets. Okay, maybe they say that maybe they are engaged in learning maybe for 2 hours or 3 hours. The rest of the time, they're maybe what they are accessing, what they are seeing, we don't know. So this is the kind of scenario. And again, after we hope that all the waves are ended. Let's hope that. So let's hope fervently that all the waves are coming down, and hopefully 22-23 session will be good for us, and the good days will be back. I am thinking, sir. Any other specific questions, Santosh? We'll come to that, sir. Thank you so much for bringing that hope. Also, sir, that probably this was the last wave that we encountered. Probably in the month of January or so. Santosh, I am in Delhi. I am in a parliamentarians round table. I took a break and came out.
So I will be leaving the meeting. Thank you for the opportunity. Namaste. Sure, sir. No worries, sir. Thank you so much for joining us, sir. Thank you. ठीक है. अभी in fact the good thing is that there are a lot of questions coming from the audience itself, and one of the questions that has come for पूजा जी. पूजा जी, एक सवाल जो लोग पूछ रहे हैं, आपने क्या सीखा जब आप काम कर रहे थे? अभी एसएमसी के तौर पर आपने काम किया स्कूल में, कोविड के समय काफी काम किया आपने. What was the main learning you had in your journey on supporting students and your communities during COVID? उस समय आपने क्या सीखा? सर, जैसे अभी एसएमसी के मेंबर हैं हम. पहले जैसे एसएमसी के मेंबर नहीं थे ना, जैसे स्कूल में जाते थे, सर थोड़ा रूडली बात करते थे और बात करते थे, वो हमें अच्छा नहीं लगता था. मैंने मैम से कहा था, जो हेड मैम है, तो मैम से बोले, वो भी थोड़ी सी रूडली बात कर रही थी मेरे साथ. जब से हम एसएमसी के मेंबर बने हैं ना, तब से उनका ना मतलब हमारी तरफ है ना थोड़ा सा चेंज हुआ. वो जैसे अब मैं हूँ थोड़ी सी मुफट, मैं बोल देती हूँ बात जो बोली मुझे. मैं जैसे एसएमसी की मीटिंग हुई ना, मैं बोली, मगर सर मतलब ये है ना, जो मैम है थोड़ी बदतमीज पेश आती है. जब हम आपको रिस्पेक्ट दे रहे तो आपको भी थोड़ा सा हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए भाई. हम आपके लिए घर घर घूमते हैं, मतलब बच्चों का एडमिशन बहुत कुछ करते हैं. थोड़ा सा आप भी अगर रिस्पेक्ट दोगे ना, हम भी आपको है ना बहुत अच्छी तरह से मतलब वो करेंगे. अब स्कूल में ऐसा हो रहा है जैसे बहन भाई हो जाओ है ना सर, हो रहा है भाई. हम अगर थोड़ा सा मतलब सुनते हैं हमारी बात, अगर अच्छी लगे तो कार्य करते हैं. ये होता है सर. काफी अच्छा. पूजा जी, मुझे लगता नहीं है कि मतलब मुझे लगता है कि आप मुफट है तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप अच्छा बोल रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और अच्छा बोल रही हैं, लोगों को अच्छा करने के लिए मजबूर कर रही हैं, तो भी अच्छी बात है. तो ऐसे ही रहिए जैसे आप हैं, और शिक्षा का प्रचार प्रसार करते रहिए आप. शबीना जी, आपसे भी ये सवाल लोग पूछना चाह रहे हैं. पीपल आस्किंग द सेम क्वेश्चन टू यू एज वेल, कि व्हाट वाज योर बिगेस्ट लर्निंग ड्यूरिंग द कोविड टाइम? आप म्यूट पर हैं, उसको अनम्यूट करना पड़ेगा आपको. ओके. जी बिल्कुल. इस पीरियड में, इस सिचुएशन में मैंने सीखा कि कम्युनिकेशन कैसे किया जाए. क्योंकि मैं एक रिसोर्स पर्सन थी, बहुत से लोगों को मैंने टीचर्स को ट्रेनिंग दी थी, लेकिन पब्लिक से इन्वॉल्वमेंट कम था मेरा, बहुत कम था पब्लिक से. टीचर्स तो मानते थे रिसोर्स पर्सन है, अगर ये हमारा एग्जीक्यूटिव फील्ड ऑफिसर है, ओके चलता है, जो भी मार्गदर्शन दे सकती है तो वो हम लोग ले सकते हैं. लेकिन पब्लिक से है ना, और पेरेंट्स है स्पेशली, वो पेरेंट्स अभी हम लोग यूनियन में उनके साथ बातें करते हैं तो उनका सिचुएशन चेंजेस था, उधर का माहौल ही चेंज था. तो दैट उस सिचुएशन में हम लोग कैसे उनके साथ कम्युनिकेशन कैसे करें, वो मैंने बहुत सीखा. मतलब ऐसा है कि मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल उन लोगों के लेवल में उतर के उन लोगों के लेवल में बात करना है, उनको मोटिवेशन. मेरा तो काम है मोटिवेशन करना, क्योंकि वो लोग बहुत से लोगों के घर में फोन नहीं देते, बच्चों को टीवी नहीं डाल के देते, और ये यूट्यूब चैनल तो दूर की बात है. तो उस टाइम पे मैंने उनको मोटिवेशन, वो बोलते हैं मैडम हम लोगों को बहुत थकावट है, हम लोग दिन भर में काम करके, अब रात में आपने मीटिंग बोलते हैं, अभी आए बोलते हैं, अब टीचर्स को बोलते हैं आपको वर्कशीट कराओ के बोलते हैं. तो उस सिचुएशन में वो हम लोगों को कोऑपरेट देने के लिए बहुत पीछे हटते थे. वो तब में हम लोग डिस्कशन कर रहे, हम लोग उनके साथ बातें, उनके साथ जो कन्वर्सेशन करना था ना मुझे, तो वो बहुत डिफिकल्ट लगता था. तो मैंने वो सीखा. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उन लोगों को मैं भी एक आपके जैसी ही, हम लोग भी आपके जैसे हैं, आपके भलाई के लिए कोशिश कर रहे हैं, आपके बच्चों के भविष्य के लिए एक काम कर रहे हैं, ऐसा उन लोगों को समझाना था. तो वो मुझे बहुत डिफिकल्ट है, वो मैंने सीखा, वो कैसे बात कर सकते हैं हम लोग पब्लिक से. अब टीचर से तो कॉमन ऑफिशियली हम लोग को बात कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक से बात करने का ना बहुत डिफिकल्ट था. वो मैंने बहुत संयम था मेरे साथ. क्या ताना में बोलते हैं बहुत से, ताड़ में इरबेक को बोल के, वैसा है ना. सहन शक्ति ना वो मैंने बहुत पाया उस टाइम. बहुत काम से बात किया मैंने. और थोड़े पेरेंट्स थे, ड्रिंक्स करके आते थे नाइट में, बहुत वो बच्चों को कुछ भी नहीं केयर नहीं करते थे. और एक्चुअली है ना, एक एरिया में बहुत से पूर लोग रहते हैं,
वो उनकी फैमिली के प्रॉब्लम से में ही डूबे रहते हैं। दिन भर जाके वो कूली करके आते हैं और शाम में आए तो बच्चों को ले ऐसा करो नहीं, अब पड़ोसी में भेज के बच्चों को लर्निंग के लिए ये डिफिकल्ट था ये बहुत सिचुएशन। और बोलते थे नहीं आप तुमकुर से आ रहे हो, आप सिटी से आ रहे हो, सिटी से आएंगे कि तो कोविड बहुत फैल जाएगा, हम लोगों को मत आओ। हम लोग आओ, इतना अनएजुकेटेड पीपल इतना थिंक करते थे कि अगर से हम लोग फोन में बात करेंगे तो भी कोविड फैल जाएगा। इतना बहुत बुरा सिचुएशन था हमारे लिए। तो हम लोगों ने क्या किया, नहीं उनको मोटिवेशन ही हमारा बहुत बड़ा काम पड़ा। इसलिए मैंने उनसे क्या सीखा, वो हम लोगों को उनकी लेवल उतर के और वो जैसे भी बात करें उनके लेवल में ही, उनकी भाषा में ही, और वो लोग क्या बोलते हैं लोकल भाषा बोलते हैं, वो भाषा में ही बात करके उनको वो जितना हो सके हम लोगों से जितना हो सके बन पड़े उतना हम लोग कुछ ना कुछ करके बच्चों के लिए लर्निंग के लिए, और बच्चों को बेसिकली कन्नड़ा इधर तो बहुत कन्नड़ा चलता है, कन्नड़ा एटलीस्ट कन्नड़ा लैंग्वेज तो भी वो टच में रहे, इतना तो हम लोग बहुत कोशिश किया। और मैंने उनसे बात करने का बहुत सीखा, उनसे बहुत सीखा। थैंक यू सो मच मैम। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ट्रेट्स। ये काफी इम्पोर्टेंट भी है कि आप किस तरीके से अलग अलग लोगों से बात कर पाते हैं, और जो आपने बहुत ही सहजता के साथ हम लोगों को अभी सिखा दिया कि कम्युनिकेशन किस तरह से इम्पोर्टेंट है। कम्युनिकेशन हर तरीके से आपको हर तरह के लोगों से, चाहे वो क्लास में बच्चा हो, चाहे वो उनके पेरेंट हो, चाहे वो एक सरकारी अधिकारी हो, कम्युनिकेशन का महत्व आपने समझा दिया मैम। थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू अमरजीत सर, आपसे एक सवाल है। मतलब आपने जब अभी हमें बताया कि आपने क्या क्या काम किया था, एक सवाल जो अक्सर उठता है जब भी सरकारी तंत्र में अच्छे स्तर पे काम कर रहे हो, बहुत बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, मतलब कुछ करना चाह रहे हैं पर शायद रिसोर्सेज नहीं है, या शायद हाथ बंधे हुए हैं, उसके वजह से कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा आपके टाइम, ऐसा कोविड के समय में ऐसा कभी हुआ आपके साथ कि आपको अंदर से थोड़ी परेशानी हो रही हो कि मैं इतना करते हुए भी बहुत सारी चीजें नहीं कर पा रहा हूँ जो मैं करना चाहता हूँ? ऐसे कुछ स्टोरीज आप बता सकेंगे सर? सर ऐसा है कि जैसे शिबिना जी ने बताया कि लोग डरे हुए बहुत थे। जो डर है लोगों का डर है। हमारे अंदर तो है कि हम काम करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन जो हम काम करना चाहते हैं वो उस काम को एक्सेप्ट नहीं करते जल्दी जल्दी। ये हम नहीं कर सकेंगे। लोगों तक पहुंचने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। तो जो मेरा अपना मिशन तो ये है कि तो हर बच्चा जो है वो लर्निंग जरूर करे, सीखे जरूर। एक पढ़ना और याद करना, लर्न करना, ये दोनों अलग अलग कंसेप्ट हैं। चाहे वो अगर हम देखें तो स्टडी में तो ये दोनों एक ही लगते हैं, लेकिन लर्न करना और पढ़ना दोनों अलग अलग हैं। हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन उसको याद नहीं कर पाते। ये कभी कभी ऐसा आता है, दिक्कत आती है कि ये कैसे लोगों को वहां तक इस लर्निंग तक हम पहुंचाएं। तो हमने ऐसा किया कि मैंने एक स्टोरी पढ़ी एक किसी अखबार में कि जब कोविड-19 का ये प्रकोप हमारे ऊपर था, तो आपको मालूम है कि सभी को कि ऑक्सीजन की बड़ी प्रॉब्लम रही हॉस्पिटल्स में। जी। एक कोई बुजुर्ग था, वो जो बीमार हो गया, उसको वो बस समाज से था, अपने जो एडजस्टेंस एरिया था वहां पर काम करता था समाज के लिए। जी सर। वो बीमार हो गए, उसको इस बीमारी ने घेर लिया। जब वो उसकी लोग काफी उसकी मानता थी, लेकिन जब वो ठीक होकर हॉस्पिटल से बाहर जाने लगा तो हॉस्पिटल वालों ने उन्होंने कहा कि सर आपका जो इलाज है वो तो हम फ्री करते हैं, लेकिन जो ऑक्सीजन का सिलेंडर है वो हमने भी खरीदा है। तो वो सिलेंडर है जो वो आपको हम उसकी हम आपके सिर्फ पैसे तो हमें वो लेने पड़ेंगे। तो वो पूछा कि कितने पैसे, तो बोलो मुझे भी 1,000 एक दिन का, 13,000 13 दिन वो रहा। जैसे कोविड के जो हमारे पैरामीटर थे या रिस्ट्रिक्शन थी हमारे कि हमने 14 दिन अंदर रहना है, 13 दिन अंदर रहना है, वो 13 दिन
उस आदमी की आंखों में आंसू आ गए जब उसने सोचा कि 13 दिन में एक दिन में 1000 का जो ऑक्सीजन मैं लेता हूँ, सभी लेते होंगे, मैं अकेला नहीं। तो वहां से मेरे मेरे दिमाग में आइडिया है कि हम अपने अपने टीचर्स को इसकी तरफ और टीचरों बच्चों को इसकी तरफ को वो सीख पाए कि ऑक्सीजन की कितनी जरूरत है, या इसके बिना जीवन नहीं है। तो हमने एक ऐसा काम किया, टीचर्स को इंस्पायर किया उनको कि एवरी टीचर विल प्लांट 5 प्लांट्स इन देयर स्कूल, और एनी अगर स्कूल में जगह नहीं है तो वो कहीं नजदीक के स्कूल में, मतलब वो जहाँ वैसी कोई खुली जगह है, जहाँ गांव में जैसे कहीं भी जगह मिलते है, वहां वो 5 पौधे जरूर लगाए। तो इससे क्या होगा, उन्होंने अपने हाथों से काम करना शुरू कर दिया। जो जब हम अपने हाथों से काम करते हैं तो जरूर हम उससे सीखते हैं। तो हमने आपको मुझे खुशी हो रही है जो मेरे टीचर्स ने बताते हुए कि 10,000 के मतलब हमने लगभग 10,000 जो प्लांट है वो हमने अलग अलग स्कूलों और गांव में वो हम लगा सकते। तो मन में ऐसा रहता है कि हम ऐसा कोई काम कर सके जो लोगों के लिए सस्टेनेबल हो, सोसाइटी के लिए सस्टेनेबल हो। तो वही एक मेरे एक टीचर ने मुझे बताया कि जब लोग पैदल जा रहे थे, आपको अपने 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 घर पे यहाँ पंजाब से प्लान कर रहे थे, तो लोगों ने बहुत मुश्किलें मतलब फेस की। किसी के पैर ठीक नहीं थे, किसको भूख लग रही थी वो से। तो वहां से एक आइडिया ये भी आया कि जो पेड़ हैं वो ऐसे पेड़ लगाए जाए जहाँ जो फल फ्रूट होगा। तो जब आप अगर कोई ऐसा कोई जा रहा है आदमी या कोई सफर कर रहा है तो उसको उसकी भूख का भी समाधान हो सके। तो इसमें लोगों को हमने सिखाने की कोशिश की है। तो मेरे ख्याल से मैं इसमें काफी ऐसी हम कामयाब हुए हैं। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर। काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। इनफैक्ट सस्टेनेबिलिटी और सस्टेनेबल इंटरवेंशन कैसे प्लान कर सकते हैं आपने बहुत ही अच्छे से हम लोगों को भी समझाया, अपने स्टोरीज के माध्यम से समझाया, एग्जाम्पल्स ले लेके समझाया। और हमारे लिए, हमारी जैसी संस्थाओं के लिए ये काफी इम्पोर्टेंट है कि हम ये समझे कि किस तरीके से हम अपने स्टेक होल्डर्स के साथ बहुत आसानी से सस्टेनेबल इंटरवेंशन प्लान कर सकते हैं, जो कि आपने भी बताया सर। थैंक यू सो मच फॉर दैट। पूजा जी के लिए एक सवाल है, चैट बॉक्स में डाला हुआ है किसी ने, कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए हम लोग और क्या क्या कर सकते हैं। ये सवाल पूजा जी आपके लिए है। स्कूल में भागीदारी बढ़ाने के लिए, जैसे कि एसएमसी मेंबर्स को उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए क्या क्या करा जा सकता है सर? ये जैसे कि धर्मेंद्र जी आप, हाँ जी सर, ये बात है जैसे हमारे एसएमसी के जो मतलब मेंबर हैं, जो जैसे हमारे मेंबर हैं धर्मेंद्र सर हैं, कृतिका जी हैं, तो ये हमें है ना समझाती है भाई, मतलब ये है आपका कार्य वगैरह, मतलब सारे कार्य हमें बताती है। फिर सर है ना जो हमारे प्रिंसिपल सर हैं स्कूल के, वो भी हमें समझाते हैं। अगर दोनों तरफ से जैसे पेरेंट्स हैं या मतलब एसएमसी के जो नए मेंबर जुड़े हैं, उनको अगर बैठ के 2 बारी समझाएंगे ना सर, तो उनके है ना खुद भी खुद समझ में आ जाएगी। हमारे भी समझ में नहीं आती थी, हमें भी 2-3 बारी सर घर भी आए हैं समझाने, धर्मेंद्र सर भी, कृतिका जी भी, तो हमें समझ में आ गई भाई हाँ हमारे कार्य क्या है, हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, सब कुछ हमें समझ में आ चुकी है सर। और कुछ आप नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूजा जी। मतलब आप काफी आसानी से बहुत बड़ी बात बोल जाते हो। मैं हरियाणा कभी आया तो आपसे जरूर मिलने आऊंगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपके साथ। अगर 1 घंटा का समय मुझे मिल पाया तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो बताऊंगा सर आपको। आप आना, अच्छी बात है कि बैठ के बात करेंगे आमने सामने, तो और भी अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कृतिका जी के साथ बात करके वो प्लान भी जरूर करूंगा। सर अमरजीत सर के लिए और सबीना मैम के लिए एक सवाल लोगों ने डाला है यहाँ पर चैट बॉक्स में, कि हाउ आर यू प्लानिंग टू इक्विप स्कूल्स एंड टीचर्स टू सर्व द स्टूडेंट नीड इन द न्यू एकेडमिक ईयर। अगले साल नया एकेडमिक ईयर चालू होने वाला है, अभी कोविड का ऐसा खतरा नहीं दिख रहा है, तो हम लोग
क्या करने वाले हैं स्कूल्स और टीचर्स के साथ जिससे कि बच्चों की पढ़ाई में फायदा होगा? ये दोनों से सवाल है सर, अमरजीत सर से भी सवाल है ये, और सबीना मैम से भी सवाल है। सर हमने तो पहले से प्लानिंग कर चुके हैं कि हमने जो बच्चों की जो एडमिशन है सरकारी स्कूलों में करवाने के लिए वक्त अलग अलग कमेटी तैयार की है हमने। टीचर्स हमारे अभी जो पटियाला की जो मैं सिचुएशन बताता हूँ, वो टीचर हमारे बिल्कुल बहुत तैयार हैं। वो उनको जो भी काम दिया जाता है वो बड़ी आसानी से कर लेते हैं। पहले जो जैसे कोरोना का जो स्टार्ट समय था, उस समय टीचर्स की ही ड्यूटी लगी हर प्लेस पे। अगर क्योंकि हमारा पंजाब में जब दिल्ली से जो लोग आते हैं, हरियाणा का बॉर्डर है, शंभू बॉर्डर बोलते हैं, और हमारे पंजाब में जो हरियाणा से आते हैं लगभग पंजाब में 5 एंट्रीज हैं, और 5 एंट्री पे हमारे प्राइमरी टीचर खास करके उन्होंने ड्यूटी दी है। तो वो इतने मतलब वो अपने हार्ड वर्कर हो गए, और उन्होंने उन लोगों के लिए जो लोग वहां से बाहर से आते थे, उनका जो हाल देख उनकी जो पोजीशन देखी, स्थिति देखी, उसके साथ से वो अपना वो काम करने के लिए हर काम करने के लिए समर्थ हो गए। तो मुझे तो अभी ऐसे नहीं लगता कि जो हम प्लान करेंगे, जैसे हमने अभी एडमिशन का प्लान किया, हमारे लास्ट ईयर 91,000 हमारे बच्चा स्टूडेंट हमारे पास दाखिल था। तो अब अभी हमने एक टीचर जो टारगेट रखा वो 1 लाख का रखा है। तो 1 लाख हम बच्चे जो हमारे सरकारी स्कूलों में हम दाखिल करेंगे। तो वो मुझे लगता है क्योंकि हमने स्टार्ट कर दिया, तो अभी तक हमारे आज की डेट अगर मैं बोलूं तो 4,000 से ऊपर जो बच्चा है वो हमारे पास रजिस्टर्ड हो चुका है। तो जैसे मैं पहले आपको बताया कि जो कोविड-19 के गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट ने शुरू किया था दूरदर्शन और रेडियो पर काम करना। तो अभी आपको दीक्षा से भी अब हमारे जो टीचर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। तो जो पहले हमने कोरोना में जो प्लानिंग की थी टीचर्स के लिए, ट्रेनिंग दी उनको वीडियो वगैरह या ऑडियो वगैरह तैयार करने के लिए, उसका भी हमें फायदा हो रहा है कि हम हमारे मैक्सिमम जो टीचर हैं वो ऐसा अपना काम कर रहे हैं। तो ये हमारी यही प्लानिंग है कि बच्चों को, अगर वैसे तो हम हर कोई ये चाहता है कि ऐसा जो समय दोबारा ना आए, अगर ऐसा आता है तो हमें कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता कि अब आएगी। हमारी ये प्लानिंग है कि हम सभी को साथ लेकर चलते हैं। जो हमारे हमने सोसाइटी का भी कोई ऐसा एस्पेक्ट नहीं छोड़ा जिससे हम खुद, मैं और मेरी टीम जो है, टीम से मैं मतलब कोई स्पेसिफिक टीम का नाम नहीं लेना चाहता। जो टीम मेरे 3,000 जो मेरा टीचर है, वो मेरी एक टीम अभी सभी टीम के मेंबर हैं। तो सभी आपको अपना जो उनको हमने जो काम दिया है वो अच्छे से कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हम टारगेट जो भी आगे इन फ्यूचर जो फिक्स करेंगे वो बड़े आसानी से हम उसको पार कर लेंगे। Thank you so much, sir. Amarjeet sir, thank you so much for briefing that entire thing about the next year, the plans for the next year. सबीना मैम, आपसे भी यही सेम सवाल है। अगले साल के लिए जब कोविड का अभी नहीं दिख रहा है कि कोविड का आउटब्रेक होगा, तो हम लोग किस तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं बच्चों के पढ़ाई के लिए? आप म्यूट पर हैं मैम। मैम आप म्यूट पर हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं भगवान को थैंक्स कहूंगी क्योंकि जैसा पीरियड न मत आया और अगेन मत आया, ये पीरियड नहीं चाहिए हम लोगों को, क्योंकि बहुत से हम लोग तकलीफें सह चुके हैं, हम लोग बहुत से मुश्किलात से हम लोग सामना कर चुके हैं। तो मैं भगवान से प्रार्थना भी करूंगी कि ऐसा पीरियड मत दे। एज ए रिसोर्स पर्सन होके, एज ए टीचर होके हम लोगों ने क्या किया है कि बोलके जो बच्चों का गैप है, वो जो लर्निंग गैप है, उसको बेसिकली एक्टिविटी बेस्ड में वो लर्निंग गैप को हम फिल कर सके। और हमारी को कर्नाटका सरकार है और वो जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है टीचर्स को, और हॉलीडेज में जितना हॉलीडेज मिले उतने दिन कलिका टीचर्स को वो ये क्या बोलते हैं, वो लर्निंग के लिए जितना लर्निंग कर सके हम लोग, जितना कोशिश रीच कर सके गोल, बच्चों को जितना गैप
हुआ है, उस गैप को, लर्निंग गैप को फिल करने के लिए बहुत से प्लानिंग तो डालती है। ट्रेनिंग्स की प्लानिंग, जो जैसे अमरजीत सिंह ने कहा, सर ने कहा ट्रेनिंग दे रहे हैं हम लोग टीचर्स को एज ए पर्सन, रिसोर्स पर्सन होके उस ट्रेनिंग में बेसिकली एक्टिविटी बेस्ड ट्रेनिंग दे के उसमें टीचर्स को ऐसे जो प्लानिंग कर रहे हैं, क्या एक्टिविटीज कितना डालें, कौन सा एक्टिविटीज से बच्चा जल्दी जितना चाहे जल्दी सीख सके। और हम लोग टीचर्स भी प्लान डाले बोल के, वो क्या है कि बच्चों को सिंपल वे कैसे सिखाए हम लोग, क्योंकि बहुत से गैप है, लर्निंग बहुत सी गैप है हम लोगों की। वो लर्निंग गैप को जितना हो सके एक्टिविटीज लर्निंग से हम लोग उन बच्चों की वो लर्निंग गैप को पूर्ण करके बच्चे जितना चाहे उतना लर्निंग आई मीन वो सीख के बेसिक जितना चाहिए उसको वो पूर्ण प्रमाण से वो सीख ले और उसके आगे की जो एजुकेशन हो वो इजी हो। इसलिए हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि छुट्टियों में बच्चों को क्या दे सके, कैसे कौन सा एक्टिविटीज दे, और कौन से एक्टिविटीज के बच्चा हमारे इसमें अभी शायद इंडिया में भी चल रहा है, शायद मुझको तो कर्नाटका का आइडिया है कि वोदू कर्नाटका, वोदू अभियान ऐसे बोल के अंडर 100 days रीडिंग और वोदू कर्नाटका, आई थिंक पोषण भारत, वो जो इतने कार्यक्रम हैं, जितने प्रोग्राम्स उन्होंने लॉन्च किए हैं इंडिया गवर्नमेंट या कर्नाटका गवर्नमेंट, वो प्रोग्राम भी हम लोग अडेप्ट करके हम टीचर्स, इवन अभी मैं स्कूल को जाके हूँ, 1 महीने से स्कूल में टीचर होके वर्क कर रही हूँ। इतने दिन तो मैं रिसर्च पर्सन होके वर्क कर रही थी, अभी मैं टीचर होके वर्क कर रही हूँ। उधर भी मैं हमें डिस्कशन करके प्लान डाला सिंपल में क्या करे बच्चों को, कैसे वो अभी तो छुट्टियां है तो बल्कि वो एंजॉय के साथ साथ में ये लर्निंग में भी वो जुड़े रहे, ऐसे प्लानिंग कर रहे हैं। थोड़ा अभी तो एग्जाम चल रहे हैं, थोड़ा हम लोग बिजी हैं, तो प्लानिंग में तो रनिंग है, वो बहुत से प्रोग्रेस करना की जितना चाहे इतना कर सके हम लोग, कोशिश है हमारी जारी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। कोशिशें कामयाब होती हैं तो कोशिश करेंगे, कामयाब होंगे हम लोग। इसके साथ पूजा जी एक सवाल आपके लिए यहाँ पर रिया जी ने पूछा है, आपके अनुसार एक एसएमसी का सही उपयोग एक स्कूल के लिए कैसे किया जा सकता है, स्कूल इंप्रूव करने के लिए, मतलब एक एसएमसी की क्या भूमिका हो सकती है स्कूल को इंप्रूव करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए? सर एसएमसी की जैसे अभी मैं ही हूँ, अब एसएमसी की जब से मैं मेंबर बनी हूँ 2-4 पीढ़ी मेरे को समझ में नहीं आया क्या है क्या नहीं। फिलहाल अब है ना सबको समझ में आ रहा है। अभी हमारी जिम्मेवारी होती है, जैसे बच्चे हैं, बच्चे सही पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। अभी तो खाना बन नहीं रहा, जो खाना चेक करने जाए सर, जैसे सफाई का, बच्चे मास्क का, कपड़ों का, मतलब ये हमारी जिम्मेवारी है। अभी बच्चा अच्छी तरह जाए, अच्छी तरह पढ़े और अच्छी तरह बढ़े। और मेरे ही बच्चे हैं सर, अगर मेरे बच्चे अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा वो करेंगे, मुझे इतना अच्छा लगेगा। और अब जब मेरे बच्चे हैं तो स्कूल के जितने भी बच्चे हैं ना, मैं सभी को अपना बच्चा समझती हूँ भाई। सभी को मैं कहती हूँ भाई अच्छा तो पहनो, अच्छा खाओ, अच्छा पढ़ो। अगर कोई गलती भी हो जाए ना, तो अगर टीचर अगर नहीं सुने ना तुम्हारी, तुम हमारे पास आओ, हम टीचर को समझाएंगे, बात करेंगे, तो वो तुम्हारी थोड़ी सी आसान हो जाएगा। थैंक यू सो मच, पूजा जी। आई थिंक सवाल भी काफी आ रहे हैं आप लोगों से पूछने के लिए, और मुझे भी बात करके बहुत ही मजा आ रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए प्रोबेबली हम लोगों को अब और सवाल हम शायद नहीं ले पाएंगे और हम लोगों को ये सेशन एंड करना पड़ेगा। बट पिछले 1 घंटों में आप लोग तीनों से बात करके बहुत कुछ सीखने को मिला। इनफैक्ट some of the words that I could use to summarize the session are what Sabina ji told, the power of communication, the power of listening. What I could gather from Amarjeet ji, the whole idea about perseverance and being in the system to drive sustainable change. What I could gauge from Pooja ji is the whole idea about just keep trying multiple things and success will chase you. You don't have to chase the success.
With Tulsi sir, it was again a very interesting discussion where Tulsi sir was able to talk about during the COVID time, the whole persistence of the private school ecosystem to make sure that children are still getting the education that they deserve. I think these were some of the words that come to my mind as I'm trying to summarize. But two of the words, which is my favorite out of the 60 minutes of our conversation, are hope and motivation. And I believe hope and motivation is what all four of you have given us in the last 60 minutes, with very concrete examples of your real life challenges and how you were able to handle those challenges. I would also like to again iterate two lines of a very famous poem, which will again summarize, which will again try to capture what we discussed in the last 1 hour. मैं अकेला ही चला था, मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया. With that, I again thank all the esteemed panelists, and I wish you all the very best in your endeavors for future as well. Thank you so much. Thank you so much, panelists. Pooja ji, Amarjeet ji, Sabina Banu ji, Tulsi ji and Santosh. Thank you for that extremely inspiring conversation. I think अगले कुछ महीनों के लिए आपने खूब सारा inspiration infuse कर दिया हमें. That's how I'm feeling, and that's how I'm sure a lot of our participants are feeling as well. So thank you. I think Sabina Banu ji ने एक line कही थी, मतलब बातों बातों में कह दी थी आपने, लेकिन साथ में रह गई कि हम लोग आपके जैसे ही है, बच्चों की भलाई के लिए कोशिश कर रहे हैं. I think that brings about how all of us are ultimately working towards those children. That's a common goal for all of us. So thank you for that very inspiring conversation.